अपने कार्यक्रम में रामदेव बाबा को अरुणाचल के कांग्रेस एमपी इरिंग ने गाली गलौज किया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल गाली नहीं दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो मत, इंडियन, यू ब्लडी इंडियन, और उनके एक साथी जो थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि यू ब्लडी इंडियन डॉग्स। तो रामदेव बाबा जैसे व्यक्ति को, जो देश में एक मान्यता रखते हैं, संत है, उनके कार्यक्रम में जो राजनीतिक नहीं था, उसमें आकर इस तरह से एक कांग्रेस के सांसद ने जिस तरह से भाषा की है, बहुत ही अनुचित है। और खासकर ये कहना कि यू ब्लडी इंडियंस, तो वो किस पार्लियामेंट में चुन के आए हैं? कांग्रेस पार्टी को हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जो उनके अरुणाचल के सांसद है डॉक्टर इरिंग, जिन्होंने रामदेव बाबा को इंडियन डॉग कहा, यानी वो खुद भारत को मानते नहीं, अरुणाचल को और खुद को भी, और रामदेव बाबा को एक भारतीय होने के नाते गाली गलौज कर रहा है। तो ऐसे सांसद पर क्या कार्रवाई कांग्रेस करेगी, इसका तुरंत खुलासा होना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दा हम संसद में भी उठाएंगे। We condemn the Congress MP's outburst against Ramdev Baba, and particularly calling Ramdev Baba as bloody Indian, meaning thereby that Arunachal doesn't belong to India, or at least the member of parliament of Congress from Arunachal doesn't believe himself to be Indian. And this is very shocking. In a peaceful, non-political program, when somebody is talking about fighting against corruption, why the Congress gets irritated? And now Congress owes an explanation as to what action they are going to take against their member of parliament, Mr. Iring from Arunachal, who abused Ramdev Baba, who is really a great sant and a great yoga guru for the country, and he is being abused by the Congress MP, and he is being abused as an Indian dog. We condemn this and we want action against him, because this is challenge to the Indian nationhood, and that is why we want Congress holds explanation as to what action they are going to take against him, or otherwise we are going to raise this matter in the parliament. जहां तक सीबीआई ने अयोध्या मामले में जो केस पहले खारिज हुई है कि जिसका कोई आधार नहीं था और इसलिए वो खारिज हो गई अडवाणी जी और बाकी नेताओं के खिलाफ, उस केस को इतनी देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील करना, ये कांग्रेस द्वारा सीबीआई का बहुत ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग का ही उदाहरण है, क्योंकि कांग्रेस ने सीबीआई की स्वायत्तता को समाप्त किया है और सीबीआई को एक कांग्रेस की कठपुतली बना दिया है। उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और वैसा ही काम करके उन्होंने दिखाया है कि जो केस का कोई आधार नहीं था और इस कारण से वो बंद हो गई थी, और उसका जो अपील करने का समय था वो भी चल गया। अब 8-9 महीने के बाद सीबीआई अचानक जाग उठी, जब पूरी तरह से कांग्रेस घिर गई है, जनता का आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ, फूट फूट कर सड़क पर आ रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन के 3 मुद्दों पर, और ऐसे में सीबीआई की ये
जो अपील है वो पूरी तरह से राजनीतिक है और पूरी तरह से ये कांग्रेस की राजनीति है, घटिया राजनीति है। इसकी भी हम भर्त्सना करते हैं और ये उदाहरण है कि कांग्रेस किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करती है राजनीति के लिए। प्रकाश जी, आर्मी चीफ ने इंग्लिश इसका एक एक पूरा ही करते। Filing an appeal by CBI in the Supreme Court regarding the case which is dismissed by the court earlier, in which Advani ji in matter of Ayodhya and other leaders were freed and were acquitted. So that appeal is a malified appeal. It is done after too much time lag and with a political intent. This is the worst case of misuse of CBI by the Congress for its political purpose. This is nothing but converting a CBI into a Congress Bureau of Investigation. As the Congress people are angry with Congress on the issue of corruption, on the issue of price rise, and on the issue of its inability and failure to bring back the black money stashed away in foreign banks. So on these three issues, the country is agitated and Congress has failed to act decisively. And that is why, to divert the attention from the main debate on the eve of the parliament session, the government has misused the CBI, and we condemn this political misuse of the CBI. Whatever the appeal, we will definitely fight it out in the court, but this is a clear-cut case of political misuse of the CBI by the Congress. प्रकाश जी, आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा है, न्यूज़ 24 का इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने कहा नक्सल के बारे में बोलते हुए कि नक्सली जो है देश तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कुछ जायज मांगे हैं जिसमें उनका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी क्या करेगा? आमतौर पर हम सेना प्रमुख के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं देते, लेकिन सेना प्रमुख को भी समझना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील विषय पर इस तरह की कोई राय प्रकट करे कि जो स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि नक्सलवादी कोई शोषण के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सेना प्रमुख के राय से इत्तेफाक नहीं रखते, हम उससे सहमत नहीं है और हम कहना चाहते हैं कि नक्सलवादी देश के विरोध में, लोकतंत्र के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, विकास के विरोध में अपनी एक अलग तरीके का जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता हथियाना चाहते हैं लड़ाई छेड़कर, और वही जंग उन्होंने छेड़ा है और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। सेना प्रमुख के बयान से निश्चित रूप से जो सुरक्षाकर्मी नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, मर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से एक धक्का लगेगा और उनको डिमोरलाइजेशन आएगा, और इसलिए ऐसे बयानों से सेना प्रमुख ने बचना चाहिए। जेपीसी को लेकर सरकार फौजी मामले को ही जेपीसी में शामिल करना चाहती है, लेकिन आप लोगों का मांग भ्रष्टाचार दूसरे मुद्दे से भी है। क्या उस मांग को लेकर आप जेपीसी में मांग करेंगे या किसी अलग उठाएंगे? नहीं, जहां तक जेपीसी के बारे में है तो सरकार ने अभी अधिकृत कोई घोषणा नहीं की है और इसलिए पर्दे के पीछे कोई चर्चा चल रही होगी, वो अलग चीज़ है, उस पर अभी हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमारा स्टैंड बहुत साफ है और अब देखना है कि सांसदीय मंत्री ने कहा है कि 23 तारीख तक होगा। ये 23 तारीख क्या है मुझे पता नहीं है। 21 तारीख को राष्ट्रपति महोदय का भाषण है। आज, कल और परसों 3 दिन में कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है और करनी चाहिए, ताकि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। पिछला पूरा सत्र कांग्रेस के अड़ियल रुख के कारण काम नहीं हो सका और आज देश चाहता है कि जेपीसी हो और संसद भी चले, और इसलिए जेपीसी
का गठन सरकार तुरंत करना चाहिए। लेकिन वो क्या मुद्दे जो थे वो 2-3 जो है आधार संहिता नहीं, इसके बारे में जब तक कि सरकार कोई घोषणा नहीं करते हम अलग टिप्पणी नहीं करेंगे। Sir, 8 countries have written to the finance ministers, sir, including Australia and some EU countries, to release payments related to the CWG amounting to about $70 million. So, what is the BJP stand on this? Should payments be released, or should government do a thorough scrutiny before actually going? The whole organizing of the CWG was so worst and riddled with corruption to an extent that our ranking on the corruption index went down from 124 to 127 during the organization of the CWG games. And if the bills are legitimate, but if bills are inflated and part of corruption, then government has to definitely check up first and then only clear the payments. Otherwise, you will be losing on both accounts. If it involves the corruption, then they must check the transaction before paying. प्रकाश जी, आडवाणी के लेटर के बाद क्या जो काला धन के मामले पर जो आप अभियान चला रहे थे उसको झटका लगा? नहीं, काले धन के मामले में कोई झटका लगने का सवाल ही नहीं है। हम तो काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत जोर से चलेगी और जोर से चलेगी। देश भर में उसको बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक, आडवाणी जी ने शालीनता का परिचय देते हुए वो पत्र लिखा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, जैसे मैंने कल भी कहा कि मुझे याद आता है कि बोफोर्स के समय में राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद ही ऐसा एक बयान दिया था कि नाइदर मी नॉर माय फैमिली। लेकिन आखिर कौथरुकी निकला। इस बार कौथरुकी कौन है पता नहीं है अभी, लेकिन इसलिए इस पर और अधिक टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। जो आरोप लगा रहे हैं उसी मामले पर आप बैकफुट पे जा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल कोई बैकफुट पे जाने का सवाल ही नहीं है। लड़ाई तो हमारी चलेगी, संसद में भी, संसद के बाहर भी। नहीं, ये किसने कहा आपको? प्रकाश, एक सवाल और है। सरकार राज्यसभा में पास हो चुकी है महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में रिलीज करने जा रही है। क्या आपका स्टैंड वही है या फिर आप देख रहे हैं कि तोड़ने के लिए एकता जो है विपक्षी पार्टी को तोड़ने की जगह सहमति आई नहीं? कांग्रेस अगर महिला आरक्षण पर सचमुच प्रतिबद्ध होती तो उसी समय वो कर सकती थी, लेकिन अब अभी भी इरादा क्या है और सचमुच में वो रखने वाले हैं कि नहीं वो देखेंगे और फिर हमारी टिप्पणी करेंगे। हिमाचल के एमपी ने बाबा रामदेव को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाने के लिए नहीं, वो उसी पर मैंने दिया है मैंने बाइट। अरुणाचल का, हिमाचल का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का कांग्रेस सदस्य इरिंग करके जो मेंबर सांसद है, उन्होंने उनको भारतीय कुत्ता कहा और ये बहुत ही भर्त्सना हमने की है और कांग्रेस से मांग की है कि वो क्या कार्रवाई अपने ऐसे सांसद पर करेगी कि जो खुद को भारतीय नहीं मानता और जो खुद को और अरुणाचल को भी भारत का हिस्सा नहीं मानता। ऐसे सदस्य को संसद में बैठने का क्या अधिकार है और इस पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी, यही हमने पूछा है और कांग्रेस से जवाब मांगा है।